Hello guys, this is Sir Mac. Today we'll be solving the exam of May June 2024 alternative to practical paper 4-2. Let's start now. Question number 1. A student investigates the resistance of a diode when different current flows through it. The student sets up the circuit shown in figure 1.1. The student connects the voltmeter into the circuit to measure the potential difference. Draw the symbol of the voltmeter connected to measure the potential difference across the diode. अच्छा, डायोड के अगेंस्ट जो है अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आई वुड बी कनेक्टिंग द वोल्टमीटर पैरेलल विद द डायोड, क्योंकि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, वेयर एज एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. मूविंग ऑन, क्या बोलता है कि द स्टूडेंट यूजेस अ कनेक्टिंग लीड टू कनेक्ट द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई टुगेदर, क्लोजेस द स्विच, रिकॉर्ड्स द वोल्टमीटर रीडिंग V, records the ammeter reading I. Figure 1.2 shows the reading on the voltmeter and the ammeter. अच्छा जी, record the reading shown in figure 1.2 in the top of the row of table 1.1. अच्छा, इधर जो है रीडिंग्स को मेंशन करना है, तो इफ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व यहाँ पे 0.2468 ओके 0.82 आ रही है, क्योंकि 0.8 यहाँ पे आ जाएगी एंड देन 0.84, 0.889296 एंड 1. तो इट्स बेसिकली इन द सेंटर, तो ये 0.82 रीडिंग है. तो ओवर हियर द रीडिंग इज गोइंग टू बी 0.82. करंट जहाँ तक बात करें तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay, so 0.1 2 0.3 and then 0.35. Current is going to be 0.35 amperes. अच्छा जी, calculate the resistance of the diode using the equation. Give your answer in the appropriate number of significant figures. Formula दिया हुआ है, that's the voltage over current, so 0.82 divided by 0.35 and the value is going to be 2.34. 2.3 लिख रहा हूँ because all the answers are given in one decimal place. So similarly मैं भी one decimal place में answer दे रहा हूँ. The student connects a 3.3 ohms resistor between X and Y. The terminal X and Y के बीच में इसने एक resistor connect किया of 3.3 ohms. Records the voltage and current reading. ठीक है जी. Opens the switch and removes the 3.3 ohm resistor. Repeats the procedure for resistors 6.8 and 10. Alright, complete the table below. Again, रेजिस्टेंस दी हुई है, वोल्टेज ओवर करंट का रेशियो होता है. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो दी हुई हैं, दैट्स इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस दी हुई है. सिंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट, मैं इस थर्ड वाले में बात कर रहा हूँ. हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 3.7 is equals to voltage is 0.81. You are required to calculate the current. 0.81 divided by 3.7, your value is going to be 0.22. So 0.22 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. Whereas लास्ट में again voltage है, current है and you need the resistance. So 0.81 you would just divide the voltage by the current 0.19 and your value is going to be 4.3. ठीक है जी, मैं ये सारी एक्स्ट्रा जो मार्किंग्स उनको मिटा देता हूँ. ठीक है जी, ये रहने देता हूँ. मूविंग ऑन. As the resistance between terminal X and Y changed, the current in the circuit changes. जैसे ही resistance between X and Y change हो रही है, the current in the circuit is changing definitely. Examine the result to show that. Describe how the changes current affect the voltage. अच्छा, करंट जैसे जैसे कम हो रहा है तो वोल्टेज में कोई खास फर्क नहीं आ रहा. वोल्टेज there is a very slight reduction in voltage. अच्छा, एक बात यहाँ याद रखिएगा, ये ATB का पेपर है. So alternative to current के पेपर में you are not required to give the explanations in terms of theory exams ना, बिल्कुल उस एतबार से नहीं. हाँ, जो आप देख रहे होते हैं टेबल में, you are actually stating that as your answers.
उनकी वजूहात है कि सर ये बढ़ेगा तो वो रिलेशनशिप और ढिमका फलाना नहीं नहीं अनटिल अनलेस वो कोई स्पेसिफिकली इस तरह से पूछे नहीं ना, तो आपने जबरदस्ती ऐसी कोई बात नहीं करनी. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू एक्चुअली गिव द वैल्यूज टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि भाई लाइक करंट कम हो रहा है तो यू कैन सी कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज बहुत कम से कम हो रहा है. इस तरीके से यू जस्ट रिक्वायर्ड टू गिव द वैल्यूज. ऐसे एक्सप्लेनेशन दीजिएगा जो आपके पास रिजल्ट से पता चल रही हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर लिटिल बिट डिफरेंट कंपेयर टू द थ्योरी एग्जामिनेशंस, ठीक है जी. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड की बात करते हैं तो डायोड की रेजिस्टेंस अगेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. All right. A student sets up the circuit using the diagram shown in figure 1.1. ठीक है जी, 1.1 was this figure. Sets up the circuit. The student finds that when the connecting lead is connected across terminal X and Y, the switch is closed, the ammeter does not give a reading. The ammeter is not broken, suggests the error that the student has made while assembling the suggests the experiment. Okay. अगर यार देखें कि वो बोल रहा है कि इसको हम लोगों ने लगाया एंड द एमीटर इज नॉट शोइंग रीडिंग, तो व्हाट एरर कैन बी देयर. हो सकता है बैटरीज रन आउट, हो सकता है डायोड इज लाइक कनेक्टेड ऑपोजिट टर्मिनल, तो उल्टा डायोड लगा दिया हो सकता है कि रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, गलत रीडिंग का रेजिस्टर लगा दिया हो, स्विच इज ब्रोकन. तो एनीथिंग दैट मेक्स सेंस द यू कैन राइट डाउन. सो एरर दैट द स्टूडेंट हैड मेड मे बी if I would be there, he connected wrong terminals of diode. Or ये let's say battery या power supply has insufficient voltage. So anything that makes sense आप suggest में लिख सकते हो. I would recommend कोई भी चीज़ जो आपको समझ आए. There is a huge range of answers जो marks scheme दे रही होती है. Moving on to question number 2. All right. Question number 2 में क्या बोलता है? Student investigates the rate of cooling of hot water in a test tube under different conditions. The student arranges a test tube as shown in figure 2.1. Pours 200 centimeter cube of cold water into the beaker. 200 centimeter cube of cold water into the beaker. Pours hot water into the test tube until it is approximately 1/3 full. Okay. ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोल्ड वाटर इनटू द बीकर. ठीक है, हमारे पास बीकर में कोल्ड वाटर है 200 सेंटीमीटर क्यूब का, और उसमें जो है टेस्ट ट्यूब में पानी डालता है, 1/3 फिल करता है. ठीक है, lowers the test tube into the beaker of cold water until the level of the hot water in the test tube is below. ठीक है, इस तरीके से लेके जाता है कि cold water is at the top and hot water is below. Places a thermometer into the test tube. इस test tube में thermometer he will be placing, and then waits for approximately 30 seconds before measuring the temperature and starting a stopwatch. ठीक है, 30 सेकंड के बाद जो है starts to measure the temperature and starts the stopwatch. ठीक है, the student measures the temperature theta of the hot water of the test tube. The thermometer readings are shown. Read the thermometer and record the temperature in table 2.1 at time 0. 73 डिग्रीज का जो है रीडिंग आ रही है, एंड ये आपने यहाँ पे बना दी. ठीक है, द स्टूडेंट मेजर्स द थर्मोमीटर टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर एवरी 30 seconds. ओके, फॉर अ फर्दर 180 seconds. द रीडिंग्स आर शोन इन द टेबल. ऑल राइट, ठीक है. Complete the column headings. Okay, column headings, time is given in seconds. Temperature is in degrees Celsius in both of the times. Complete the time column. So हर 30 seconds के बाद ले रहा है, तो I'm just gonna do it in multiples of 30, and that's pretty much it. Okay. Describe in detail one precaution that the student must take to make sure that the temperature measurements are as accurate as possible. अच्छा, accuracy की बात कर रहा है. So whenever precautionary बात की जा रही हो, one precaution, तो आप इसमें parallax error की बात कर सकते हैं. Make sure the readings when
noting the readings down, when actually looking at the readings, when noting them down, it should be on the eye level. Take readings on eye level, avoiding parallax error. तो ये चीजें प्रिकॉशंस में आ जाती हैं. अब स्टीयरिंग करना, जो टेम्परेचर कांस्टेंट करना, वो प्रिकॉशन नहीं है, वो तो एक एक्चुअली स्टेप है. तो एक यूनिफॉर्मली टेम्परेचर को थ्रू आउट जो है आप पूरे लिक्विड में वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. दैट्स नॉट अ प्रिकॉशन. प्रिकॉशन होती है जो रीडिंग लेते वक्त में चीज़ों को मेजरमेंट में जो है एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं माइनर सी जो आपको पता होनी चाहिए. The student repeats the procedure in A and B, but with 200 centimeter cube of warm water instead of cold water in the beaker as shown in 2.4. All right. Warm water के साथ भी इसने experiment बनाया हुआ है, and then 2.4 हमारे पास जो है नीचे है. अच्छा, 2.4 में this is the reading. अब इसमें जो है warm water के साथ जो है ये experiment किया है, similar experiment. The student's readings with warm water are shown in figure 2.1. Just look at that. One of the student readings of a warm water recorded are anomalous. Anomalous का मतलब होता है that anything that's not following the trend. ठीक है, not following the pattern या trend. For example, 10, 20, 30, 40, 100, 50, 60. So if the readings are 10, 20, 30, 40, 100, 60, तो ये 100 जो है ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही. इट्स रादर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड. सो दिस रीडिंग वुड बी कंसीडर्ड एज एनोमलस. ठीक है जी, एनोमली होती है वो रीडिंग जो ट्रेंड को फॉलो ना कर रही हो. जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द एनोमलस टेम्परेचर रीडिंग एंड एक्सप्लेन हाउ यू डिसाइड दैट द रीडिंग इज एनोमलस. तो वार्म वाटर में मैं ग्राफ पे गया. ओके ऑलराइट. So this reading of 35 is I am considering as anomalous क्योंकि हमारे पास it's not following the trend. rather 55 के बाद थोड़ा सा reduce होना चाहिए था, but उसके बाद जो है 52 तो makes sense, but 35 does not make sense. तो anonymous reading is 35 and explanation it is not following the trend. तो ये आप ऐसे ही याद रखिएगा. Moving on further. Use the temperature reading in table 2.1 to calculate the temperature decrease of hot water in the test tube after cooling for 180 seconds in both the beakers of cold water and the beaker of the warm water. अच्छा, कोल्ड वाटर में 73 से 34 तक आ गया, तो टेम्परेचर डिक्रीज 73 माइनस 34, टेम्परेचर डिक्रीज जो होगा दैट इज 39 डिग्रीज का फर्क आया. Whereas warm water में 75 से 52 तक आ गया, the decrease in temperature is 75 minus 23 which is around 23 degrees. तो 39 and 23, 39 degrees was reduced and 23 degrees was reduced. Cold water में definitely यार temperature change ज़्यादा आएगा. क्यों ज़्यादा आएगा? temperature difference ज़्यादा है. common sense की बात है भाई, जितना ज़्यादा temperature difference होता है उतना ज़्यादा transfer of heat होती है. Eventually उतनी जल्दी जो है टेम्परेचर चेंज होता है. यूजर आंसर्स टू D2 to decide how the temperature of the water in the beaker affects the rate of cooling of hot water in the test tube. State your conclusion. Again, क्या कंक्लूजन स्टेट कर सकते हैं D2 के आंसर के तहत कि भाई कोल्ड वाटर टेम्परेचर डिक्रीज was more in cold water. क्यों ज्यादा था अभी मैंने उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया समझाने के एतबार से, as there is more temperature difference. याद रखिएगा इस बात को, इस चीज को समझिएगा that if let's say I'm just giving you a concept. यहाँ पे मेरे पास एक इसके अंदर लिक्विड है एंड द टेम्परेचर ओवर हियर इज लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. और अगेन एक और है, इसमें भी लिक्विड है, सेम एवरीथिंग इज सेम, आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं, हर चीज़ सेम है, लेवल भी सेम है. और यहाँ पे जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका 50 डिग्री सेल्सियस है. तो क्योंकि 10 और 50 के अंदर द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज हायर,
तो यहाँ पे ये चीज जल्दी ठंडी हो जाएगी कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यार इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 20 डिग्री का है और इसमें 40 डिग्री का है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ कूलिंग। इस बात को याद रखिएगा। State one improvement to the experimental procedure described in A and B that allows a more valid comparison to made between the two rates of cooling. Last exam जो था मैंने जो solve किया है that is for 1 of 2024. That exam in this exam has this same question. तो ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का था। इफ यू लुक एट द टेबल यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि इनिशियल टेम्परेचर्स आर नॉट सेम। तो वैलिड और बहुत अच्छे आंसर्स के लिए वी नीड टू हैव द इनिशियल टेम्परेचर्स टू बी सेम। तो व्हाट इंप्रूवमेंट शुड बी लाइक देयर, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इनिशियल टेम्परेचर्स वुड बी शुड बी सेम। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऑल राइट, a student investigates the balancing of a meter rule which has a load of mass m fixed to a 5 centimeter mark, fixed to it at the 5 centimeter mark. The student places a pivot under 50 centimeter mark, okay, on the rule, places another load of mass m 50 grams on the rule, adjusts the position of the load with mass m 50 grams until the rule is as close to the balance as possible as shown in figure 3.1. Okay. Figure 3.1 shows the position of the 50 grams mass when the rule is balanced. अच्छा जी, ये mass है और इसकी position बताई हुई on the rule. Take the readings from the rule and use them to determine the position of the center of the mass. Okay. पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। गुड 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 क्वेश्चन यार। अब हमारे पास ये यहां से शुरू हो रहा है, द मास स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर, ठीक है। तो 93.5 से स्टार्टिंग एंड 95.9 पे इट्स एंडिंग। तो 5.9 में से 90 अगर सेंटर पॉइंट निकालना है 93.5 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, यू वुड गेट द सेंटर पॉइंट 93.5 प्लस 95.9 एंड देन यू गेटिंग इट एज 94.7। ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसकी रीडिंग 94.7 की आएगी। अगेन यार देख लो इस बात को, ये सवाल हम लोगों ने मोमेंट्स में थ्योरी में भी जैसे किया था एक, कि दोनों के सेंटर पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट्स ऑफ एंडिंग एंड स्टार्टिंग, इनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, गेट द एवरेज। लोग सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा वेयर द मास वुड बी, क्योंकि यूनिफॉर्म मास है, ठीक है, तो इसका जो है सेंटर बिल्कुल सेंटर में ही आएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 50 ग्राम्स मास टू द 50 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर मार्क है, यहाँ पे हमारे पास 94.7 का मार्क आया है, तो 94.7 में से 50 माइनस कर दो, द डिस्टेंस डी वुड बी 44.7। ये मार्किंग्स हुई हुई ना स्केल की, तो 94.7 माइनस 50 यू वुड गेट द डिस्टेंस एज 44.7। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1000 ओवर डी। ओके, 1000 डिवाइडेड बाय 44.7 you would get the value as 22.37. Okay, record the answer on the answer line and table 3.1. 3.1 में भी इसको रिकॉर्ड करना है, सो 22 और इसमें ठीक है क्या आ रहा था 22.37 तो 1000 ओवर डी है ना, 22.4 जाएगा 37 का, और डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, तो 44.7, ठीक है 44.7। अच्छा, ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड इन फिगर 3.3 ऑन द टेबल ऑन पेज 12 प्लॉट द ग्राफ ऑफ मास ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट 1000 ओवर डी ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, मास अगेंस्ट 1 ओवर डी के ग्राफ को बनाना है, ठीक है, एंड द ग्राफ शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इट्स नॉट नीड टू स्टार्ट, तो डेफिनेटली यार अगर मैं ओरिजिन से शुरू करूंगा तो वो सेंस ही नहीं बनाता ना,
अगेन 2024 का जो पेपर 4-1 था उसमें भी इस तरीके से ग्राफ था जो सेंटर से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा. मेक श्योर यू लुक एट दैट पेपर एज वेल. ठीक है. ऑल राइट, आई हैव मेड अ ग्राफ ऑलरेडी, ताकि जो है थोड़ा सा टाइम जो है बच जाए. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई टुक द रीडिंग्स ऑफ मास फ्रॉम 50, 60, देन 70, 80, 90, 100, क्योंकि 50 से 100 तक हमारे मास की रीडिंग थी. एंड 1/d की वैल्यूज 20 से शुरू की, 23 to 20, 30, 40, 50, 60, because we just needed them by 50, क्योंकि 45 is the maximum value. तो मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके जो है सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया था. I'll just explain them. 50 पे it's 22.4, so 50 पे it's 21, 22.4. अगेन मैंने सारे पॉइंट्स को जो है प्लॉट कर दिया था. यू जस्ट हैव टू प्लॉट देम अप. पॉज द वीडियो, जिनके पास पेपर प्रिंटेड है प्लॉट कर लें. ठीक है. एंड देन लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना ली मैंने. ठीक है. माई लाइन ऑफ बेस्ट फिट लुक्स समवर लाइक दिस. ठीक है. मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दी है already. And then you're required to calculate the gradient of your line, show all the working, and indicate on the graph the values you use. इंडिकेट द वैल्यूज, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि भाई जो भी आप पॉइंट्स ले रहे होते हो आपको एक जो है ट्राइंगुलर मेथड यूज करना होता है. आई ऑलवेज रिकमेंड कि यूज द ट्राइंगल मेथड, ताकि इसमें कोई गलती के चांसेस ना हो. आपके पास आपके एग्जामिनर को पता हो दैट दीज आर द पॉइंट्स दैट यू यूज्ड, और आप उन पॉइंट्स को फिर या मेंशन भी करें दैट ओवर हियर आई एम यूजिंग दिस पॉइंट विच इज अराउंड, अच्छा मास 100 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट नहीं लूँगा मैं. आई वुड रादर यूज समथिंग मोर सेंसिबल, दिस वन. ठीक है. एंड आई वुड रिड्यूस द लाइन ओवर हियर ताकि जो है वो 100 तक रहे. अच्छा, बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैंने जो है अपनी वैल्यूज लेनी थी. तो आई एम यूजिंग दिस वैल्यू, यस दिस पॉइंट्स आई एम यूजिंग. ठीक है. मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ. ट्राइंगल मेथड है, पूरा ले लेते हैं. ठीक है जी. पार्शियल करके थोड़ा इसको रब कर देते हैं. ओके, दिस पॉइंट ओवर हियर is going to be 24.5. 24.5, 25, 26, 27, 28, 24.5 है. And then the second is the value is 55. ठीक है. 24.5 and 55 over here. The value over here is 97.5 for the y. All right, 95 and 97.5, yes. And the x is going to be somewhere around to 40, 41, 42, 43.5. Yes, 43.5. Okay, so gradient is calculated 97.5 y2 minus y1 over x2 minus x1 for the gradient. ठीक है जी. 97.5 minus 24.5 divided by 43.5 minus 55. यार ये नेगेटिव नहीं आ सकता, मैं कुछ ब्लंडर कर रहा हूँ. 1 सेकेंड. 43.5 एक्स है ना यार. आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने जो है ना एक्स को बाद में लिख दिया था. इट वुड हैव टू बी लाइक दिस. सो इट्स 43.5 and 97.5 as the coordinates. ठीक है. Yeah, that's one thing that I okay, so 97.5 minus 55, 97.5 minus 55 over here, and then the down would be 43.5 minus 24.5. 43.5 minus 24.5. ठीक है. Just plugging the values in the calculator. 97.5 minus 55 divided by 43.5 minus 24.5. I'm getting the value as 2.24. All right. The mass m of the load fixed to the rule can be determined using the equation that mass is equals to 22.2 times the value of g that I just calculated. Mass की value क्या आ रही है? 22.2 multiplied by 2.24. The value is 50.4 grams. Suggest why this method of determining the mass to the fixed load is unsuitable if the movable load of mass 40 grams is used.
Suggest why this method of determining the mass m of the fixed load is unsuitable if a movable load of mass 40 gram is used. अगर movable load of 40 gram यूज करूंगा तो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी मूवमेंट्स बराबर ही नहीं होंगी। इफ दिस इज मूवेबल लोड, अगर मैं लेट्स से 40 का यूज कर रहा हूँ और यहाँ 50 है, तो इवन इफ आई प्लेस इट एट द मैक्सिमम ये बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि masses डू नॉट, तो वो आप ये लिख सकते हो दे वोंट बैलेंस। तो दे वोंट बैलेंस तभी तो बैलेंस हमेशा वो टॉपल ही करेगा। तो आई थिंक दैट्स गोना बी इट। ऑल राइट, this is all for question number 3. Let's move on to question number 4. Very important question. A student has a converging convex lens and needs to determine its focal length. Plan an experiment that will ensure the student to measure an accurate value for the focal length of the lens. The focal length f of the lens can be calculated using the equation this, where u is the distance between an object and the lens and v is the distance between the focused image of the object and the lens. Figure 4.1 shows some of the apparatus available. Triangular object hole cut into the piece of card. All right, the lamp is powered to connected to a power supply and can be switched on and off as required. ठीक है, write a plan for the experiment. In your experiment, you should list the apparatus that you needed. Draw a diagram of the arrangement. Okay. Explain briefly how to do the experiment. State the steps taken to obtain a sharp focused image. Explain how to use your readings to determine f. अच्छा जी, अच्छा, for f you need the value of u and v, and first of all you are required to list some apparatus that you need, and then you are drawing the arrangement. मैंने एक डायग्राम इसके ऊपर वैसे ही ड्रॉ की हुई है, सिंस यू शुड नो कि भाई जो u है उसने बताया है कि अंग्रेजी में कि u इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द लाइट सोर्स, और v जो है इमेज का डिस्टेंस होगा विद द लेंस। ये बात उसने यहाँ बताई है, v इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस्ड इमेज एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। तो आपने जो है एक तो सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए यू वुड नीड फ्यू थिंग्स। सो apparatus की बात करूं तो एडिशनली यू वुड नीड आई गेस मीटर रूल. Meter rule is must for the measurement, and with that you need the screen. तो white card sheet would be needed as what do you call it, the screen. अच्छा जी, इसके अलावा what guys you would be needed is the मीटर रूल आ गया, शीट आ गई, स्विच इज बैटरी पावर सप्लाई टू पावर द लैम्प। पावर सप्लाई है स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए, यू वुड बी नीडिंग दैट, ठीक है। स्विच से जो है आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू वुड नीड। अगेन यू वुड नीड नथिंग एल्स, स्टैंड ऑलरेडी गिवन है तो या यू डोंट नीड दैट। अच्छा, तो ये तो हो गया। ड्रॉ द डायग्राम, दैट्स ऑलरेडी देयर। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वुड यू कैरी द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए I would start off with place the lens at the center and move it back and forth to get a sharp image. Measure distance u by the meter rule and distance v respectively. ठीक है जी, u का डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, v का डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया बाय द मीटर रूल, ठीक है जी। ऑल राइट, ओके, स्टेट, ठीक है, स्टेट द स्टेप्स यू टेकन टू शार्प फोकस्ड इमेज। अच्छा जी, ये तो मैंने स्टेट स्टेप्स भी स्टेट कर दिए और वो भी दोनों चीज साथ ही लिख दी हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वुड यू कैरी द एक्सपेरिमेंट।
ये वाला पॉइंट जो है मैं थोड़ा आगे लिखना चाहिए था मुझे, रादर इससे पहले जो पॉइंट लिखना चाहिए था मैं उसको स्ट्रेट कर देता हूँ कि प्लेस द लैम्प back of the card position the lens such that image is seen on the white card sheet. ये आपने क्या करना है, लैम्प को पहले ऐसे रखना है बैक ऑफ द कार्ड पे, देन लेंस रखना है ताकि आप एक स्क्रीन पे इमेज देख सकते हो. देन इन ऑर्डर टू मेक दिस इमेज शार्पर यू वुड हैव टू लाइक मूव द लेंस बैक एंड फोर्थ ताकि जो है इससे अच्छी इमेज जो है आप डिस्कस कर सको. ठीक है, उससे मर्ज जितनी शार्पेस्ट इमेज बन सकती है. ओके get different readings of u and v and plug it in equation uv over u plus v. आखिर में you will average the readings to get accurate value of f. ठीक है, वैसे तो इन्होंने नहीं बोला टेबल बनाने का, बट आई थिंक अगर हम बना दें तो कोई इसमें मुजाहिका नहीं है. ठीक है, तो अगेन मैं इसमें ये सारी टेबल ड्रॉ कर देता हूँ सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ताकि क्योंकि अगर इफ़ आई वुड हैव बीन डूइंग द एक्सपेरिमेंट आई वुड हैव पुट दिस ताकि मेरे लिए थोड़ी सी इजी हो जाए. ठीक है जी, तो दैट्स प्रीटी मच इट. तो that's how you get this experiment done. That's all for the exam. I hope you benefited from there. Comment कीजिएगा, subscribe the channel. Thank you so much.